عام انتخابات میں صرف 6 روز باقی، تیاریاں عروج پر۔ سندھ میں 1,22,000 پولیس فورس تعینات ہوگی۔ نگران صوبائی وزیر کہتے ہیں تمام پولنگ عملہ 7 فروری کو پولنگ اسٹیشن پہنچے گا۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے عاجز جمالی کی رپورٹ میں۔ حکومت سندھ کے اعداد و شمار کے مطابق صوبہ سندھ میں 19,006 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے جائیں گے، جن میں 6,469 انتہائی حساس، 5,631 حساس اور 5,989 پولنگ اسٹیشنز کو نارمل قرار دیا گیا ہے۔ نگران وزیر اطلاعات سندھ محمد احمد شاہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ سندھ میں الیکشن کے موقع پر 1,22,000 پولیس فورس تعینات ہوگی، 9,600 رینجرز اہلکار، 998 اینٹی انکروچمنٹ فورس کے جوان، ایکسائز پولیس کے 500 افراد، محکمہ جنگلات کے 282 افراد اور 22,870 لیڈی ہیلتھ ورکرز کی بھی خدمات حاصل کی جائیں گی۔ پولیس 1,15,000 صرف 30 اور قومی رضاکار پولیس 7,000، یہ ہو گئے 1,22,030۔ اینٹی انکروچمنٹ فورس کے 998 لوگ، ایکسائز پولیس 550 550، اینٹی کرپشن پولیس 282، فارسٹ ڈپارٹمنٹ 400، سول ڈیفنس 500، لیڈی ہیلتھ ورکر 22,870، اس کے علاوہ رینجرز کے 9,600 ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ نے بتایا کہ انتخابی اخراجات کے لیے 8 ارب 67 کروڑ روپے جاری کر دیے گئے۔ سیلاب متاثرہ اسکولوں کے لیے 1.5 ارب روپے، اسکولوں میں سہولیات کے لیے 3 ارب 30 کروڑ روپے، ڈپٹی کمشنرز کو 30 کروڑ روپے فراہم کر دیے گئے۔ CCTV کیمرے نصب کرنے کے لیے 1 ارب 63 کروڑ روپے، پولیس کے اخراجات کے لیے 62 کروڑ 54 لاکھ روپے۔ ہم نے ٹوٹل الیکشن کے لیے 8.67 بلین 8 ارب 67 کروڑ روپے، 1.5 ارب روپیہ 386 فلڈ افیکٹڈ اسکول کی جو بلڈنگ تھی ان کے لیے جاری ہوا ہے، 3.3 بلین جو باقی اسکول تھے جن کو منیمم ریپیئر کی ضرورت تھی اس کے لیے، گاڑیوں کے لیے ریٹرننگ آفیسر اور ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر اور مانیٹرنگ آفیسر 30 کروڑ روپے ان کو جاری ہوئے ہیں۔ 1 ارب 63 کروڑ روپے جو ہمارے لگ رہے ہیں وہ CCTV کیمراز اور اس کی ٹیکنالوجی کی جو چیزیں ہیں اس پہ لگ رہے ہیں پولنگ اسٹیشن، اور پولیس کو 62.5 کروڑ گیا، یہ ہو گیا 8.67 بلین۔ نگران صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ تمام پولنگ عملہ 7 فروری کو پولنگ اسٹیشنز پہنچے گا اور رات وہیں گزارے گا۔ کیمرہ مین شکیل خان کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔ پولنگ اسٹیشنز میں کیمرے لگنا شروع ہو گئے۔ پولنگ اسٹیشنز پر انٹرنیٹ کے لیے وائی فائی ڈیوائسز بھی پہنچا دی گئی۔ رزلٹ بھیجنے کے لیے انٹرنیٹ سروسز وائی فائی ڈیوائسز سے ملیں گی۔ پولنگ اسٹیشنز میں لگنے والے کیمروں کا مانیٹرنگ سسٹم بھی وہیں لگے گا۔ عملے نے انٹرنیٹ کیبلز بچھانا شروع کر دی۔ کیمروں کی تنصیب نیشنل ریڈیو ٹیلی کام کارپوریشن کر رہی ہے۔ آج رات تک الیکٹرانک ڈیوائسز کی انسٹالیشن مکمل کر لی جائے گی۔ صدر میں صوبائی الیکشن کمشنر کے دفتر کے باہر دھماکہ، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ دھماکے کے مقام سے ٹائمر ڈیوائس اور 12 وولٹ کی بیٹری بھی ملی ہے۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ نے رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق دھماکہ ڈیٹونیٹر اور تقریباً 400 گرام بارودی مواد پھٹنے سے ہوا۔ بم دستی ساختہ تھا جسے سافٹ کنٹینر میں تیار کیا گیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے صوبائی الیکشن کمیشن کے باہر دھماکے کا نوٹس لے لیا۔ SSP جنوبی اور ضلعی مانیٹرنگ کمیٹی سے رپورٹ طلب کی۔ SSP جنوبی کے مطابق بم شاپر کے اندر تھا۔ جس لڑکی نے شاپر اٹھا کر الیکشن کمیشن کے دفتر کی دیوار کے ساتھ رکھا اسے حراست میں لے لیا۔ اس کی ہر حوالے سے انویسٹیگیشن کریں گے۔ جہاں دھماکہ ہوا وہاں پارکنگ تھی، صبح سے پارکنگ ختم کروا دیں گے اور بیریئرز لگائیں گے۔ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 7:45 بجے یہ ہلکا سا بلاسٹ ہوا ہے۔ یہاں پہ کوئی چیز شاپر کے اندر پڑی ہوئی تھی، جو کہ ہمارے BD نے کنفرم کیا ہے کہ اس میں ہلکی مقدار کا 300 سے 400 گرام کا ایکسپلوسو ہوم میڈ مٹیریل تھا، اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ٹائم بم بھی لگا ہوا تھا، ٹائمر لگا ہوا تھا، اور ایسے اس میں اور کوئی نیٹ بولٹ یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی جس سے کہ کسی کو جانی نقصان پہنچے۔ یہ کسی شاپر میں ادھر ہی روڈ پہ کہیں سائڈ پہ پڑا ہوا تھا۔ ایک لڑکا تھا جو وہاں شاپر اٹھا کے لایا اور ادھر اس نے رکھا۔ جب اس نے یہ رکھا ادھر تو اس سے یہ بلاسٹ ہوا ہے، ہلکا سا بلاسٹ ہوا ہے، جس سے وہ خود بھی محفوظ ہے،
किसी को कोई किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा है। आपने खुद भी देख लिया होगा और अपेरेंटली यही लगता है कि किसी ने ये शरारत के तौर पे इस तरह का ये काम किया है। देखिए हम इसको अभी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन ज़ाहिरी तौर पे यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ ऑफिस हैं और वहाँ पे सिक्योरिटी भी लगी हुई है और काफ़ी मकदार में सिक्योरिटी लगी हुई है। बाकी यहाँ पे जो पार्किंग वगैरह है इसे सुबह से हम इसे इंशाल्लाह क्लियर कर देंगे और बैरियर भी लगा देंगे ताकि मज़ीद सेफ्टी और सिक्योरिटी। आरोपी हिरासत में लिया? हाँ, जिस लड़के ने ये उठा के शॉपर यहाँ पे रखे उसको रखा है हमने। कराची पुलिस चीफ ने इलेक्शन के हवाले से अहकाम जारी कर दिए। एडिशनल आईजी कराची कादिम हुसैन रिन का किसी भी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मी के तनासुब में तमाम जोनल DIGs को सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म। कराची पुलिस चीफ ने किसी भी किस्म की शिकायत के लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी कर दिया। मजीद वो क्या कहते हैं आपको सुनवाते हैं। कादिम हुसैन रिंद आपसे मुखातिब हूँ, कराची पुलिस चीफ। 8 फरवरी बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है, हमारे लिए दिन है और मैं कराची के शहरियों को मुखातिब करते हुए ये कहूँगा कि आप बेशक अपने घरों से निकलें ज़रूर और अपना वोट कास्ट करें। और पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही होगी, हम जो है वो अवेलेबल हैं पुरअमन इंतखाबात के लिए, आपकी सिक्योरिटी के लिए। मेरी सिर्फ ये एक अपील होगी शहरियों से कि इलेक्शन के दिन किसी भी गैर कानूनी एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व ना करें। दंगे फसाद होते हैं, हवाई फायरिंग्स होती हैं। अगर कोई भी शहरी इस किस्म के काम में देखा गया तो उसके ख़िलाफ़ सख्त इक़दामात होंगे। हमने पहले भी एक मैसेज किया था न्यू ईयर के लिए कि गैर कानूनी फायरिंग वगैरह कोई भी ना करे, लेकिन कुछ लोगों ने फिर भी ये काम किया और आपकी इतला के लिए 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ़्तार किया गया उसमें और FIRs दाखिल की गई। स्क्रीन पे आपके नंबर आ रहा होगा। मैं शहरियों से भी अपील करूंगा कि आप में से अगर किसी को कोई ऐसी इतला मिलती है तो हमें ज़रूर वो वीडियो क्लिप भेजें। हम उस शहरी के ख़िलाफ़ जो कानून तोड़ रहा होगा, हवाई फायरिंग कर रहा होगा, किसी दंगे फसाद में होगा, उसको गिरफ़्तार करेंगे और उस पर FIR होगी और वो जेल जाएगा। तो मैं शहरियों को ये कहूँगा कि आप अपना भरपूर वोट का इस्तेमाल करें, लेकिन किसी भी गैर कानूनी एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व ना करें। थैंक यू वेरी मच। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के इंतखाबी मुहिम तेज। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सिंध के सदर महमूद मौलवी ने महमूदाबाद का दौरा किया। सिटी 21 से ख़ुसूसी गुफ्तगू में उनका कहना है कि शहर में पुरअमन माहौल में इलेक्शन की मुहिम चलनी चाहिए। सबको एक दूसरे को बर्दाश्त करने की ज़रूरत है। अयाज राना की रिपोर्ट देखिए। वक्त कम मुकाबला सख्त, शहर कायद में इलेक्शन की तैयारियां उरूज पर। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी सिंध के सदर इंतखाबी मुहिम के हवाले से महमूद मौलवी महमूदाबाद पहुंचे। महमूद मौलवी ने महमूदाबाद में IPP के उम्मीदवार का इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह किया। उम्मीदवारों के हमरा शहरियों से मुलाकात की और पंफलेट तकसीम किए। सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू में IPP सिंध के सदर महमूद मौलवी का कहना था कि शहर में अमन कायम रहना चाहिए और सबको एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए। इंतखाबात के नताइज सबको तस्लीम करने चाहिए। अवाम जो है फैसला खुद करेगी। हम कोशिश अपनी पूरी कर रहे हैं, मगर मालिक का बड़ा करम है, कोई रेजिस्टेंस हमें कहीं नहीं है सबके लिए, और होना भी यही चाहिए। सब सब्र व तहम्मुल से इलेक्शन का इंतज़ार करें और जिस दिन इलेक्शन हो जो है अवाम के ऊपर छोड़ दें। जिसको अवाम वोट दे उसको एक्सेप्ट करें। देखें ना, एक दूसरे का साथ तसादुम, लड़ाई झगड़ा, मार कुटाई, ये मुल्क का नुकसान नहीं। अपने हम सब जो है भाई हैं, पाकिस्तानी हैं, चाहे वो कहीं से भी हों, सब पाकिस्तानी हैं। महमूद मौलवी ने मजीद कहा कि 9 मई का वाकया तो बराह रास्त पाक फौज पर हमला था। PTI को कुछ लोगों ने तबाह कर दिया और आज इस नहज पे पहुंच गए। और उसकी मेन वजह मैं हमेशा कहता था, जो मैंने जो मीटिंग में जो 9 मई से पहले कहा था, आइदर वील गो फॉर अ डिज़ास्टर और अ सिविल वॉर। कुदरत ने बचा लिया कि हम सिविल वॉर की तरफ नहीं गए और हम मतलब PTI डिज़ास्टर की तरफ गए। उसकी वजह देखें ना, अपने ही फौज से लड़ना, ठीक है ना, और जो कि फ़ौज जो है इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। अगर हम लोग जो है फ़ौज से लड़ेंगे तो फिर बाहर वालों से कौन लड़ेगा। महमूद मौलवी का साफ कहना था कि इस बार इलेक्शन के नताइज अगर तस्लीम नहीं किए गए तो तीसरी कुव्वत को आने से कोई नहीं रोक सकता। कैमरामैन वकास लोधी के साथ अयाज राना, सिटी 21। इंटर के इम्तहानात के मुतनाज़ नताइज, मशीन की गलती या करप्शन, तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर-ए-आला को पेश कर दी गई। 2 साबिक चेयरमैन और नाज़िम इम्तहानात कसूरवार करार दिए गए हैं। मज़ीद इस रिपोर्ट में।
इंटर के नताइज में हीर फेर का कसूरवार कौन? वजीर आला की तहकीकाती टीम ने रिपोर्ट पेश कर दी। वजीर आला की कायम करदा इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट पेश की। तर्जुमान वजीर आला का कहना था कि कमेटी ने नताइज में हीरा फेरी और करप्शन में मुलविस अफसरान का तयन किया। 2 साबिक चेयरमैन और 2 नाज़िम इम्तिहानात कसूरवार करार दिया गया है। कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक अफसरान इंटर के नताइज में हीर फेर में मुलविस पाए गए। कमेटी की जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ तादीबी और मुजरिमाना कार्रवाई की सिफारिश की गई है। इंटर बोर्ड में हिसाब किताब रखने का कोई मुनासिब तरीक़ाकार नहीं। कमेटी ने इंकिशाफ किया है कि इंटर बोर्ड में डेटा ओवरलैपिंग और डुप्लीकेशन का बहुत ज्यादा इम्कान है। मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स खोलने से पहले बोर्ड ऑफ गवर्नर्स से इजाजत नहीं ली गई। कानून के मुताबिक सरकारी पैसा सिर्फ मंजूर शुदा बैंकों में रखा जा सकता है। मुलाजमीन की तकर्रियों और तरक्की पर भी कमेटी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इंटर बोर्ड मुलाजमीन की तरक्की का दारो मदार बोर्ड की सवाबदीद पर छोड़ दिया गया है। मुख्तलिफ असामियों पर तकर्रियाँ और भर्तियाँ कवायद वाज़े किए बगैर की गयी। मुख्तलिफ मुलाजमीन को रोज में तरमीम किए बगैर तरक्की दी गई। तमाम बकाया जात और पेशगी अदाइयों की छानबीन और रिकवरी होनी चाहिए। कमेटी ने सिफारिश की है कि इंटर बोर्ड में ओपन चेक की प्रैक्टिस फौरी बंद की जाए। तमाम अदायगियाँ क्रॉस चेक, पे ऑर्डर और बैंक ड्राफ्ट के जरिए की जाएं। सिंध हुकूमत ने महकमा बल्दियात में 16 और 17 ग्रेड के 536 अफसरान भर्ती कर लिए। नई भर्तियां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की गई। खवातीन अक़लियतियों और खसूसी अफराद की खाली 40 असामियों पर नई भर्तियां ना हो सकें। महकमे बल्दियात में नए भर्ती होने वालों में 17 ग्रेड के 419 म्यूनसिपल अफसरान और 16 ग्रेड के 117 असिस्टेंट अकाउंट्स अफसरान शामिल हैं। खवातीन अक़लियतों और खुसूसी अफराद की खाली असामियों पर किसी ने अप्लाई तक नहीं किया, जिसके बाइस भर्तियां नहीं हो सकें। कराची को काबिल रिहाइश बनाने के लिए कायम महकमे में अरबों की करप्शन। क्लिक नामी महकमे में 32 अरब की करप्शन का इंकशाफ सामने आया। 100 सड़कों की तमीर में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया। एंटी करप्शन ने क्लिक में करप्शन की तहकीकात शुरू की है। क्लिक समेत KMC, डिस्ट्रिक्ट और यूसीज की सतह पर ठेकों की तफसीलात मांगी गई हैं। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक KMC के महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने क्लिक का ऑडिट किया। पहले मरहले में 157 मनसूबों का ऑडिट किया गया। 100 सड़कों की तामीर में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया। एंटी करप्शन ने क्लिक में करप्शन की तहकीकात शुरू कर दी। KDA के साबिक चीफ इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम रामचंद को मुतलका रिकॉर्ड के साथ 5 फरवरी को तलब कर लिया गया है। एंटी करप्शन प्रोजेक्ट डायरेक्टर क्लिक आसिफ खान के खिलाफ भी तहकीकात कर रही है। महकमा मौसमियात ने कराची में कल शाम और रात में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। मगरबी हवाओं का सिस्टम कल शाम बलोचिस्तान से सिंध में दाखिल होगा। कराची में जो हल्की बारिश हुई है सुबह, कहीं शावर्स हुए हैं और कहीं लाइट रेन और कहीं पर ड्रिजल थोड़ी थोड़ी देर के लिए, तो ज़्यादा 1 मिलीमीटर रिपोर्ट हुई है। बुनियादी तौर पे हुई जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो बलूचिस्तान में दाखिल हुई है गुज़श्ता रात से, उधर गवादर साइड पे भी हल्की फुल्की बारिश हुई है। तो ये अगले 2 से 3 दिन तक प्रिवेल करेगी बलूचिस्तान में खासकर, और कराची में आज शाम में फिर इम्कान होगा हल्की बारिश का। और कल इम्कान है कल शाम या फिर कल रात, यानी 3 फरवरी की शाम या फिर 3 और 4 की दरमियानी रात, उसमें गरज चमक के साथ किसी जगह पर हल्की, किसी जगह पर दरमियानी बारिश, हल्की से दरमियानी बारिश मुतवक्की है। साथ में गरज चमक भी हो सकती है, इसलिए कि जो बलूचिस्तान से वेव जो निकलती हुई सिंध में जब दाखिल होगी ख़ासकर कल शाम में, तो उसकी शिद्दत में कतरे इजाफा होगा। तो इस लिहाज से कराची में थंडरस्टॉर्म रेन के चांसेस होंगे। आज तो लाइट रेन है और कल थंडरस्टॉर्म रेन, लाइट टू मॉडरेट रेन। और सिंध के दूसरे जो अजला हैं हैदराबाद, मीरपुर ख़ास और ऊपर नवाबशाह, सांगड़ और सखर, लाड़काना, जैकोबाद वगैरह, उन एरियाज में भी गरज चमक के साथ कहीं पर दरमियानी और कहीं पर हल्की बारिश मुतवक्की है। बलूचिस्तान में बहुत तेज़ बारिश का इम्कान है। कुछ जगहों पर खान और खुजदार और लसपेरा डिस्ट्रिक्ट और फिर कोस्टल पट्टी जो है उसमें पसनी और गवादर वगैरह की एरियाज़ में तेज़ स्पेल मुतवक्की है। और कहीं पर लोकल जो नदी नाले हैं उनमें तो ज्ञानी भी आ सकती है। फिर ये पूरे पंजाब पे फैलेगी, साउथ पंजाब से होती हुई अपर पंजाब, सेंट्रल और अपर पंजाब, फिर KP, कश्मीर और उन तमाम एरियाज़ में अगले 2 से 3 दिन तक अच्छी बारिश मुतवक्की है और पहाड़ों पर बर्फबारी भी मुतवक्की है। इससे
शहर में बारिश के पेश नज़र वाटर कॉरपोरेशन में सीवरेज के अमले की छुट्टियां 5 फरवरी तक मनसूख कर दी गईं। शहरियों को निकासी के निज़ाम से महफूज रखा जाए, एमडी वाटर कॉरपोरेशन ने हिदायत जारी की। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन ने बताया कि सीवरेज के अफसरान को निकासी के निज़ाम को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की है। एमडी वाटर कॉरपोरेशन का कहना है कि शहरियों को निकासी के मसाइल से महफूज रखा जाए। अफसरान अपने अपने डिवीज़न में हंगामी दौरे करें और सूरत हाल का जायज़ा भी लें। अब आपको बताएं कि गवर्नर हाउस पर उम्मीद की घंटे पर आने वाले शहरियों की दाद रसी का सिलसिला जारी। गवर्नर सिंध ने मज़ीद 23 अफराद में इमदादी चेक तकसीम कर दिए। तमाम अफराद ने कामरान टिसोरी से माली इमदाद की दरख्वास्त की थी। मदद मिलने पर शहरियों की गवर्नर सिंध को ढेरों दुआएं। गवर्नर सिंध का कहना है, दुनिया भर में हुकूमतें अपने शहरियों के हकूक़ का ख्याल रखती हैं। मेरे बस में जो है वो शहरियों के लिए कर रहा हूँ। चाहता हूँ हर शख्स को उसका हक मिले। सिंध के लोगों के लिए मुफ्त इलाज की सहूलत की भी कोशिश कर रहा हूँ। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि शहरियों को इलाज मुआलजे की मयारी सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाएंगे। कोशिश है बल्दिया उस्मा कराची के तहत चलने वाले तमाम अस्पतालों को फ़ाल किया जाए। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी ने बल्दिया उस्मा कराची के दफ्तर में मेयर कराची से मुलाकात की। दोनों फ्री कैंप में बल्दिया उस्मा कराची के मातहत चलने वाले अस्पतालों को जदीद सहूलियात से आरास्ता करने पर मुशावरत हुई। मेयर कराची ने फैसल ईदी को अस्पतालों में सहूलियात के फुकदान से मुतालिक आगाह किया। फैसल ईदी ने अस्पतालों को जदीद सहूलियात से आरास्ता करने के लिए मेयर कराची को ताउन की यकीन दहानी करा दी। कराची के अवाम की हिफाजत का इंतजाम। पुलिस चीफ ने न्यू सब्जी मंडी में कमांड एंड कंट्रोल रूम का इफ्तिताह कर दिया। 117 कैमरे नस्ब किए गए हैं। कराची से अनुषा जाफरी की रिपोर्ट। शहरियों को स्ट्रीट क्रिमिनल से बचाने का अज़म, पुलिस का अहसन इक़दाम, जदीद कैमरों की तनसीब। एडिशनल आईजी कराची खातिम रिंद ने न्यू सब्जी मंडी में कंट्रोल रूम का इफ्तिताह कर दिया। कमांड एंड कंट्रोल रूम में 117 कैमरे नस्ब किए गए हैं। कराची पुलिस चीफ कहते हैं, इन कैमरों से हमें क्राइम कंट्रोल करने में काफी मदद मिलेगी। ये जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स कम्युनिटी पुलिसिंग कराची के हेल्प के साथ और कोऑर्डिनेट के साथ आपके पास जहाँ पे जो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी और सक्सेसफुल कोशिश भी है और मॉडल भी है। जहाँ जहाँ पे ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं, क्योंकि हम उनके पार्टनर्स हैं पुलिस, कराची पुलिस, तो हमें पता है कि उन इलाकों में क्राइम कंट्रोल पे बहुत विजिबल एक डिफरेंस महसूस किया है हमने। कंट्रोल रूम में 2 जदीद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरे भी शामिल हैं। सब्जी मंडी के अंदर दाखिल होने और बाहर जाने वाले किसी भी शख्स पर नजर रखी जा सकेगी। जदीद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरे इंटरनेट से मुंसलिक होंगे। किसी भी कार, मोटरसाइकिल या गाड़ी की फौरी तफसीलात सामने आ सकेंगी। कैमरामैन हसनैन के साथ अनुषा जाफरी, सिटी 21। कौंसल जनरल हाउस में इंसानी भाईचारे के आलमी दिन की तकरीब। मुत्तहिदा अरब अमारात के कौंसल जनरल बखीत अतीकुर रुमैती मेज़बान बने। तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि मुल्क में अमन और समाजी इस्तेहकाम को बढ़ाने की ज़रूरत है। कुछ शुक्रिया दे रहा हूँ जो आप लोगों ने आज हमारा दावत कबूल किया, और मैं बहसीत जनरल कौंसल ऑफ यूएई का और यूएई गवर्नमेंट का तरफ से और यूएई अवाम का तरफ से आप लोग को शुक्रिया दे रहा हूँ। और जो आपकी कम्युनिटी भी हमारा पास है यूएई में, तकरीबन 16-17 लाख मुकीम है पाकिस्तानी मुख्तलिफ़ कम्युनिटी में का जो हमारा मुल्क बना था। आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर में, आपके हर शुबे में आपके पाकिस्तान ने अवाम ने, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने हेल्प किया। हम लोग को उस चीज़ को मद्देनज़र रख के पाकिस्तानी को अच्छे नज़र में देखते हैं, हमेशा अच्छे मुल्क को भी, आपके मुल्क को अच्छे नज़र में देखते हैं। जो हमारे खालिक और मालिक हैं वो हमें इस काम को बरकत दे। कौंसल जनरल साहब को ख़ास बरकत दे कि जो फ़राख दिली और मोहब्बत का इजहार वो करते हैं, बल्कि अपनी शख्सियत ही से करते हैं, तो वो दूसरों को खींच लेते हैं। अब रुख करेंगे कारोबार की दुनिया। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 7 पैसे सस्ता होकर 279 रुपये 41 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 13 पैसे महंगा होकर 281 रुपये 21 पैसे का हो गया। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 7 पैसे की कमी हुई। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपये 48 पैसे से कम होकर 279 रुपये 41 पैसे पर बंद हुआ। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 13 पैसे इजाफे से 281 रुपये 21 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में यूरो 1 रुपये 93 पैसे से महंगा होकर 305 रुपये 67 पैसे और बरतानवी पाउंड 1 रुपये 73 पैसे महंगा होकर 358 रुपये 19 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में अमाराती दिरहम 1 पैसे इजाफे से 76 रुपये
96 पैसे का हो गया और ओपन मार्केट में सऊदी रियाल 75 रुपये 2 पैसे पर बरकरार। फाउंडेशन पब्लिक स्कूल के तहत नेशनल कोचिंग सेंटर में सालाना स्पोर्ट्स डे का इनेकाद किया गया। इवेंट में तलबा और तालिबात ने अपनी महारतों का भरपूर मुजाहिरा किया। तफसीलात मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट में। तलबा की जिस्मानी नशोनुमा के लिए खेलों का बड़ा इवेंट नेशनल कोचिंग सेंटर में मुनक्किद हुआ। फाउंडेशन पब्लिक स्कूल के सालाना स्पोर्ट्स गाला के आगाज में तलबा व तलबात ने टैबलोस पेश किए। तलबा व तलबात के दरमियान हाई जंप और दौड़ के मुख्तलिफ मुकाबले हुए। फाउंडेशन पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल साइमा शाहिद का कहना है कि खेलों की सरगर्मियों से तलबा व तलबात की सलाहियतों में इजाफा होता है। बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 कैंपसेस, एक गुलशन और डिफेंस के बच्चे इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और ये प्रीमियर लीग एक दिन का है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी सीजन्स हैं, सीरीज ऑफ गेम्स हैं। हमारी यहाँ पे टीम्स होती हैं, बास्केटबॉल, फुटसॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट, जो पूरा साल खेलते हैं और खेलने के हुनर सिखाए जाते हैं। सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं बल्कि ये भी कि कंपटीशन कैसे किया जाता है। मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले तलबा व तलबात का कहना था कि खेलों में इंसान जहनी तौर पर मजबूत रहता है। हमारी स्टडीज़ के साथ ऐसे इवेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और इससे स्कूल में बच्चों में हमेशा देयर इज़ दिस एनर्जी दैट रिमेन्स एंड इट्स ऑलवेज देयर अमंग्स द स्टूडेंट्स। सो इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू हैव स्पोर्ट्स अलॉन्ग विद योर स्टडीज़। हर दफ़ा ये एनुअल इवेंट होता है FPS की तरफ से, जिसमें हम लोग अपनी स्पिरिट्स और अपनी कैपेबिलिटीज़ को शो कर सकते हैं ना। ये इवेंट बहुत अच्छा है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने प्रिंसिपल का, इन लोगों ने ऐसा इवेंट रखा है और आगे ऐसा होता रहे। रंगारंग प्रोग्राम में तलबा के वालिदैन बच्चों की हौसला अफजाई करते रहे। तकरीब के अख्तिताम पर कामयाब तलबा व तलबात में इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा, मोहम्मद अम्माद, सिटी 21।